Hey everyone, in previous video we done parasitism and temporary parasitism. Okay, so you can check the previous video. In this video we shall continue this topic. The second part is permanent parasites. Permanent parasites को हम होलो parasites भी कहते हैं. ये नेम से पता लग रहा है परमानेंट. परमानेंट मीन्स हमेशा अपने होस्ट के साथ ये पैरासाइट रहेगा. Okay, so many of examples we will study later on in next chapter. Some examples like Entamoeba histolytica which cause the amoebic dysentery. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने. एंड so these all are the permanent parasites. So this is the most important example, that is the deep sea angler fish. So it shows the sexual parasitism. इसमें क्या होगा कि जो larger organism है that is female एंड टिनी जो हमारे पास छोटा ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेल एक्ट एज अ पैरासाइट. मेल एक्ट करेगा एज अ पैरासाइट ऑन द हेड ऑफ फीमेल एंड ऑब्टेन इट्स एंटायर नरिशमेंट. वो पूरी की पूरी जो नरिशमेंट है वो ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द फीमेल. So such type of association in which male is always living with female and acting as a parasite, it is a sexual parasitism and it is a permanent parasitism. Okay, so next we have other example like parasite shows the digenetic and trigenetic nature like Leishmania plasmodium is a digenetic malarial parasite. So these all are the most important. And the Butyraria, you all know that Butyraria have two hosts, that is the mosquito and the human. So this is the digenetic. So next we have other examples like related to plant. Cuscuta. कसकटा जो है जिसको हम कॉमनली अमरवेल बोलते हैं एंड इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता. सो ये दूसरे प्लांट से नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा. ठीक है, बाय द कॉन्टैक्ट विद जाइलम एंड फ्लोएम. सो मैनी एग्जांपल्स आर अदर लाइक द पार्शियल पैरासाइट्स के विस्कम. सो हियर आर डायग्राम्स ऑफ दिस कसकटा एंड द विस्कम. एंड विस्कम इज अ hemiparasite. Okay, and Cuscuta is a hollow parasite, means this is a permanent parasitism and this is a temporary parasitism. Temporary parasitism we already done in previous video. Temporary means the parasites spend most of their life cycle as a free organism but only a part of life cycle spent as a parasites. Okay, so next we have the classification on the basis of location of parasites. So in previous video we start the classification of parasite on the basis of period. Okay, that is the temporary and the permanent. Next is the location. On the basis of location, that is the ectoparasite and endoparasite. So let's start. So the name represent ectoparasite means the parasite live on outside, not inside, outside the host body. So this is the external or ectoparasitism. So the ectoparasitism divided into three categories, means the parasite ectoparasite which live either on the feathers, hair, flakes of skin. ओके, जो फीड करेगा ऑन द feathers, hair, flakes ऑफ स्किन मीन्स डेड मटेरियल्स पे. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है वर्ड लाइज की. वर्ड लाइज जो है वो कोई भी वर्ड हो गया उसके फैदर पे, हेयर पे और उसके जो फ्लेक्स होंगे स्किन के डेड मटेरियल उस पे जो फीड करेगी, जैसे कि वर्ड लाइज है. ओके, उसके बाद है कुछ लिव करेगी टिश्यू के साथ, फीड ऑन द लिविंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट. ओके, जैसे कि स्केल माइट्स है. एंड कुछ जो है सक करेगी ब्लड को, जिसको हम सेंक्यूवेरिस कहते हैं. जैसे कि हमारे पास हेड लाउस है, बेडबग है, रेड फ्ली है, सी लैम्प्रे है. सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म. नेक्स्ट वी हैव एंडोपैरासिटिज्म. So as the name represents, endo means the parasite live inside the body of the host. So these are called the internal or the endoparasitism. So on the basis of their position inside the host, endoparasitism had the four categories, that is the cytozoic,
histozoic, gut endoparasites, and the body fluid. So now the name represents cytozoic. Cyto means cell, histo means tissue, and gut means stomachs related. Okay, and body fluids live in the body fluid of host. ठीक है, बॉडी फ्लूइड में रहेगा ये, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द साइटोजोइक एंडोपैरासाइट. सो द पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द स्पेसिफिक बॉडी सेल्स ऑफ द होस्ट. सेल, साइटो मीन्स सेल, सेल में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस in the motor neurons of man and causes the polio. Other example, leishmania in the endothelial cells of the blood capillaries of the visceral organs and causes the kala azar. So here are the diagrams of leishmania. So you must draw the diagrams with explanation. And next we have second type of endoparasitism, that is the histozoic endoparasite. Histozoic, these infect the body tissues of the host. Okay, so we have many examples like the guinea worm and the trichina worm. So here are the diagram of these all. And next we have the gut. These are found in the alimentary canal. For example, grand old man of intestine in human intestine and causes the giardiasis characterized by the diarrhea. Next we have the entamoeba histolytica in the small intestine of man and causes the amoebic dysentery. And pork tapeworm we already studied in previous classes. Pork tapeworm and the Ascaris lumbricoides in the intestine of man causes the teniasis and the ascaris respectively. So जो हमारा पोक टेबम है वो क्या कोज करता है, टेनियसिस. एंड राउंड वर्म एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकोइड वो क्या कोज करता है, एस्कैरिसिस. तो ये जो हमारा गट एंडोपैरासाइट है वो इंटेस्टाइन में हमारे जो पैरासाइट्स है वो लिव करते हैं. ओके, next we have body fluid parasite. So these live in certain body of the host. बॉडी फ्लूइड में रहेंगे. फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो फ्लूइड होता है वहाँ पे मैन वहाँ पे कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस को. एंड वुचरेरिया वो रहती है लिम्फ वेसल्स में एंड कोज द एलिफेंटियासिस. अदर एग्जांपल सिस्टोस्टोमा in the blood of man causes the schistosomiasis. So here are many examples. We must learn at least 2 examples with the name of type of endoparasite. Okay, so अगर आपने एंडोपैरासाइट लिखा, आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. हमने जो है 4 टाइप एक्सप्लेन करने हैं इसके. अभी तो सेकंड चल रहा है ना, तो हमने क्या करना है, इसके टाइप को या तो फ्लो चार्ट बना दो, साथ में डायग्राम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपने विद डायग्राम बनानी है. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी. वो जस्ट इजी है, फैकल्टेटिव एंड दी ऑब्लिगेटरी. जो हमारा फैकल्टेटिव है वो क्या है, हमारे पास टेम्परेरी है, टेम्परेरी रहेगा जैसे कि हमने पीछे पढ़ा. ऑब्लिगेटरी वो परमानेंट रहेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रोप्रॉन है फैकल्टेटिव. एंड हमारे पास जो मोस्टली फ्लैट वर्म्स है, टेप वर्म्स है, राउंड वर्म्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, दैट ऑल आर दी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. ओके, सो एक और एग्जांपल इन्होंने, जैसे अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे एक्टो एंड एंडोपैरासाइट, ठीक है, अलग अलग पढ़े, बट एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों को शो करता है एज वेल एज एक्टो एंड एंडो. जैसे कि हमारे पास सेकुलिना पैरासाइटिज्म का क्रैब, तो ये क्या है, एक्ट करता है एज अ दोनों, इसमें जो है दोनों होते हैं एक्टो एंड एंडो. सम ऑर्गेनिज्म शो दी बोथ ecto and endoparasitic phases. So these are the example of this. तो ये हमने कर लिया. Next we have the on the basis of nature of host. So these are the last of the parasitism type. Host, on the basis of nature of host we have various type, that is the euphagus and यूफैगस होगा, फाइटोफैगस होगा, एंड वी हैव द सोशल एंड हाइपर पैरासाइट एंड द सेक्सुअल पैरासाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द यूफैगस पैरासाइट्स. यूफैगस एज द नेम रिप्रेजेंट, यूफैगस मीन्स ये एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है. सो दीज आर द पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स. यूफैगस पैरासाइट किसके पैरासाइट्स है, एनिमल्स के. So main parasites of man are
protozoans, bacterial, fungal, viral, or we other parasites are the euphagus and the man parasite. So let's start with the protozoans, that is the ant amoeba histolytica, which cause the amoebic dysentery, and the mouth amoeba cause the pyorrhea. So these all are the examples of the euphagus. जैसे ये है गैडिया, ये कोज करता है डायरिया, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिस स्लीपिंग सिकनेस, लिशमेनिया, कालाजार एंड दी। सो ये सारे एग्जांपल हैं जो प्लाज्मोडियम वाइरस, ये हमने 4th यूनिट में पढ़ी है। सो आप यहाँ पे ऐसे याद रखना 4th यूनिट की एग्जांपल आएंगे, जो भी 4th यूनिट में दे रखी है मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे सिलेबस में। जैसे ये है ना प्लाज्मोडियम, एंटोमिस्टोलिटिका, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिस, जब हम 4th चैप्टर करेंगे ना तो हमें नेचुरली याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये वाली एग्जांपल्स आनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल पैथोजेंस। एग्जांपल्स आर विब्रियो, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। तो यहाँ पे 2nd यूनिट का आ जाएगा, जैसे 2nd यूनिट में है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है 2nd यूनिट में ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड, ओके। तो ये आ गया इसका। एंड बैक्टीरिया आर आल्सो नोन टू कॉज दी सर्टेन डिसीजेज इन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। कुछ एनिमल्स में बैक्टीरिया कुछ डिसीज़ को कॉज करता है, जैसे हमारे पास एंथ्रेसिस है, वो कॉज करता है एंथ्रेक्स डिसीज़ इन कैटल में। जो भी हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, मीन्स जिससे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है, तो उनमें जो है बैक्टीरिया डिसीज़ को कॉज करता है कई बार, जैसे ये है। और भी हमारे पास बहुत सारी इन्होंने एग्जांपल दे रखी है। सो नेक्स्ट वी हैव द फंगल पैथोजेंस। अभी ये जो है हम यू पैरासाइट्स ही कर रहे हैं, ठीक है, जो यूफैगस पैरासाइट्स है। फंगल में हमारा जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ट्राइकोफाइटोन, वो कॉज करता है एक कॉन्टेजियस स्किन डिसीज़ कॉल्ड दी रिंग बम। हमें पता है वो रिंग बम होते हैं ना, हाथ में जैसे निशान सा होता है ऐसे, है ना, कई बार ऐड भी आती है इनकी। तो ये क्या है, ह्यूमन फंगल डिसीज़। जैसे हमारे पास पल्मोनरी में, एथलेट फुट डिसीज़ में ये जो है पैरासिटिज्म हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द वायरल पैथोजेंस। Viruses are the obligatory, means these are the permanent parasitism and host specific intracellular parasites and known to cause a number of human diseases. Recently we already see that the COVID-19 virus, so this is the example of viral pathogens, ठीक है। Other examples like varicella virus causes the chicken pox, variola virus causes the smallpox, rubella virus causes the measles, hepatitis B virus causes the hepatitis, and human immunodeficiency virus causes the AIDS. So these all are the examples of viral pathogens. Next we have the helminth pathogens of man, okay. So Taenia solium causes the teniasis, Ascariasis lumbricoid causes the ascariasis, and Wuchereria bankructi causes the elephantiasis. So we must learn at least 2 examples, okay, with the name of the type of parasite. Next we have second type on the basis of nature of force, that is the phytophagous parasite. Phyto means plants, okay. So these are either ecto or endoparasites of plant. For example, bacterial, fungal, animal. So if we are studying about the zoology, so आपको जो है इतना phytophagous को डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट आप थोड़ी सी मेन एग्जांपल ऐसे ऐड दे देने की, हाँ फाइटोफैगस पैरासाइट्स, ठीक है, हेडिंग डाल के उसमें जो मेन एग्जांपल्स हैं वो आपने लिखनी है। अदरवाइज़ ये इतना सारा लिखने की आपको नीड नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग zoology नॉट बॉटनी, ओके। सो फाइटोफैगस में हमारे एग्जांपल में लिख देना हमने कि Xanthomonas citri causes the citrus canker in the citrus plant. Oryzae causes the blight disease of rice. 2 examples, okay, and बस इतना लिख दोगे, that's it. नेक्स्ट भी है, ये भी आपने जो है बीच में ऐड कर देना है। टमाकू मोज़ेक वायरस अफेक्ट करता है टमाकू को, एंड रेड कॉटन वर्क सकिंग द सैप फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, बस ठीक है, 4 कर लो, इनमें से 2 भी याद रह जाएगी, दैट इज़ सफिशेंट। उसके बाद है सोशल पैरासाइट। सोशल पैरासाइट में क्या होगा कि इज़ अनदर इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पैरासिटिज्म
इसमें जो है वन स्पीशीज़ एक्सप्लॉइटेड बाय अनदर स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के थ्रू जो है एक्सप्लॉइट हो जाती है। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अपने फ़ायदे के लिए उसको नुकसान पहुंचा देता है, जो उसको किल कर देता है, हटा देता है, क्योंकि उसको जो है कुछ बेनिफिट होना है उससे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि क्वीन आंट और बी, ये क्या होता है, इसमें कुछ स्पीशीज़ एंटर कर जाती है नेस्ट ऑफ द आंट या फिर बी पे, और जो ओरिजिनल क्वीन होती है ना उसको किल कर देती है, और जो नकली क्वीन होती है ना, जो जैसे ये क्वीन है, ठीक है, ये क्वीन है, बट कोई और ऑर्गेनिज्म आया, इसने ओरिजिनल क्वीन को किल कर दिया और यहाँ पे ये खुद आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो है सोशल पैरासाइट्स आ गया। उसके बाद कोयल, वो अपना जो है कोई भी नेस्ट जो है प्रिपेयर नहीं करती है, ठीक है। तो जो फीमेल है वो एग को ले कर देती है इन क्रो नेस्ट में और अपने एग्स को वहीं छोड़ देती है। जो जंगवन होते हैं वही जो फोस्टर पेरेंट है वो उनकी केयर करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं, रियर करते हैं। सो इसी टाइप की जो कोयल वाली जो हमने एग्जांपल पढ़ी वो एक काउ वर्ड है, दैट इज़ दी मोलोथ्रस एटर, उसमें भी ये देखा गया। एंड इस टाइप की पैरासाइट्स को हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, व्हाट इज़ अ ब्रूड पैरासिटिज्म, ओके। सो वी मस्ट रिमेंबर दिस. Other examples like beetles and buzz similar to this, okay. So next we have the hyper parasites. So नेम से पता लग रहा है हाइपर पैरासाइट्स, यहाँ पे एक दो नहीं मतलब तीन टाइप के पैरासाइट जो है वो प्रेजेंट होंगे। हाइपर पैरासिटिज्म इज अ स्पेशल काइंड in which a parasite is further parasitized by another parasites. For example, नोजिमा जो है वो प्रोटोजोन दैट इज़ दी पोलीमोर्फा एंड टोड से एक हाइपर पैरासाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पेस्टिस जिनोप्साइला एंड दी रैट फ्ली, रैट वो क्या करते हैं, वो भी हाइपर पैरासाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी सेक्सुअल पैरासाइट्स। सेक्सुअल पैरासाइट्स में क्या होता है कि कोई जैसे मेल है, जैसे हमने पीछे पढ़ा एंजलर फिश का, ठीक है, वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो मेल था वो फीमेल से अपनी जो न्यूट्रिशन था वो सारी न्यूट्रिशन ले रहा था। इसमें क्या है, जो लार्ज ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फीमेल एंड दे टिनी male act as a parasite on the head of the female and obtain its the entire nourishment. वो पूरी की पूरी nourishment इससे obtain कर रहा है. So such type of association in which male is always living with female acting as a sexual parasitism. Okay, तो यही है. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है. उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज़ द मेल सचिस्टोसोमा blood fluke. So okay, so carries the female fluke permanently in the gynecophoral canal formed at the ventral side. So these are some examples of the sexual parasitism. So we done the parasites. Next we shall do the characteristics. सो हमने अभी क्या किया, इसमें पैरासाइट्स क्या है, हमने जो है पैरासाइट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लोकेशन, इंटीमेसी, नेचर. पीरियड के बेस पे हमने उसको डिवाइड किया टेम्परेरी, परमानेंट. लोकेशन के बेस पे कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है, दैट इज़ एक्टो, एंडो, इंटीमेसी, फैकल्टेटिव एंड द ऑब्लिगेटरी. नेचर के बेस पे हमने उसको जूफैगस, फाइटोफैगस एंड उसमें जो है सोशल पैरासाइट्स एंड हाइपर पैरासाइट एंड द सेक्सुअल पैरासाइट्स के बेस पे हमने उसको आगे क्लासीफाई किया. तो बस इतना ही है. उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स. देखिए जो हमने पीछे पढ़ा कि पैरासाइट्स क्या है, वो भी एक हमने पढ़ा ना कि ये क्या है, एक एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, ठीक है. जैसे हमने डेफिनेशन ही की तो थोड़ी थोड़ी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं हमने इधर से ही लिखनी है, ठीक है. जैसे इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन. तो यही हमने जो पढ़ा है ना, बस वही थोड़ा थोड़ा ऐड करना है एंड आगे कुछ और यूनिक करैक्टर्स है वो भी हमने ऐड करने हैं. सो दिस इज़ द एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट. नेक्स्ट इज इट कैन बी परमानेंट एंड टेम्परेरी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. हमने फर्स्ट टाइप किया.
उसके बाद ये एक्टो एंड एंडो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे। उसके बाद हमने एंडो को फर्दर डिवाइड किया साइटोजोइक, गट, बॉडी फ्लूइड एंड द हिस्टोजोइक, ठीक है। एंड साइटो मीन सेल, हिस्टो मीन टिश्यूज, गट मीन्स इंटेस्टाइन से रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल फ्लूइड, ऐसे हमने एग्जांपल की है, ठीक है साथ में। उसके बाद ये आगे इंटीमेसी एंड ऑब्लिगेटरी, इंटीमेसी के बेस पे हमने ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टेटिव के बेस पे किया, नेचर पे हमने किया, ठीक है, ये सारा पीछे से। उसके बाद इसके और टाइप भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ये हम ऐड कर सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो साइज़ के बेस पे भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज़ दी माइक्रो पैरासाइट्स एंड दी मैक्रो पैरासाइट्स, ठीक है। माइक्रो मीन्स हमें नेम से पता है बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है, सिंपल फंजाई, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो पैरासाइट। एंड मैक्रो पैरासाइट इंक्लूड द फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म, लाइस, फ्लीज, टिक्स, माइट्स एंड हायर फंजाई, ओके। सो हमने जो है पीछे पढ़ा, हमने टाइप पढ़े, उसमें ये नहीं था, तो ये भी हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि हाँ हमें ये भी आता है, ठीक है, तो ये भी बता देना है हमने साथ में। एंड डिफरेंट पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड डिफरेंटली, डिफरेंट पैरासाइट जो है अलग अलग वे से वो ट्रांसफ़र होते हैं टू दी होस्ट। जैसे कि माइक्रो पैरासाइट्स है वो ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या फिर ये ट्रांसमिट होता है इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली थ्रू द सम वेक्टर। जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विद कॉन्टामिनेटेड स्ट्रक्चर, एनिमल बाइट, बोरिंग दस थ्रू द स्किन एंड वेक्टर बोर्न पैथोजेंस, ओके। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में फॉर एग्जांपल एंटमीवा गिगीवैलिस है, दैट इज़ द माउथ मीवा। ये एंटमीवा हिस्टोलिटिका नहीं है, ठीक है, तो आपने जो है साथ में स्पीशीज़ जीनस का ध्यान रखना है। सो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग माउथ टू माउथ, ठीक है, ये बैक्टीरिया वेनल डिसीज़ लाइक कुछ डिसीज़ हो एंड चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स के थ्रू भी ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है अब फैल जाती है माइक्रो पैरासाइट्स। नेक्स्ट भी है दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स है बाय द कफ एंड स्नीज, उसके थ्रू भी जो माइक्रो पैरासाइट्स है जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बट उसके थ्रू भी जो माइक्रो पैरासाइट है वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, डायथीरिया एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है, ओके। नेक्स्ट वी हैव विद कॉन्टामिनेटेड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एंटमीवा हिस्टोलिटिका इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, सिस्ट के फॉर्म में, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट की फॉर्म में जो है ये कॉन्टामिनेट करती है माइक्रो पैरासाइट को। जैसे कि हमारे पास और भी बैक्टीरिया जैसे कॉलेरा का, टाइफॉइड का, तो वायरस ऑफ फीड्स विद द कॉन्टामिनेटेड ब्लड, तो इससे क्या होता है हमारा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। अदर्स आर दी एनिमल बाइट, जैसे कि रेबीज़ वायरस है वो जो है जैसे डॉग, कैट, मंकीज़ की बाइट से स्प्रेड होता है। उसके बाद बोरिंग थ्रू स्किन, जैसे लार्वा ऑफ एंसिलोस्टोमा हुकवर्म है वो जो है होस्ट की बॉडी को वोर करता रहेगा, तो थ्रू द स्किन ऑफ फुट। नेक्स्ट वी हैव वेक्टर बोर्न पैथोजेंस, नंबर ऑफ वेक्टर्स carrier hosts are known to transmit the parasites. For example CC fly, इसका पैथोजन है ट्राइपेनोसोमा, ये जो है कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस। सैंड फ्लाई लिशमीनिया को कोज करता है एंड इसको कालाजार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लिशमीनिया पे नोट, ठीक है, और कई बार फिल इन द ब्लैंक आता है 1 मार्क में कि सैंड फ्लाई, ठीक है, कौन सी डिसीज़ कोज करती है और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फीमेल एनोफ्लीज, ये सबको पता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया को कोज करता है एंड रेड फ्ली। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं हमने कर लेनी है, एटलीस्ट 3 जो है आपने कर देनी है यहाँ पे एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद जो है जो माइक्रो पैरासाइट है थ्रू द सेक्सुअल एक्ट, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़,
एड्स हमें पता है, ठीक है। तो सारे जो है क्या कोज करती है, माइक्रो पैरासाइट्स को स्प्रेड करने में। ये सारे जो फैक्टर्स है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड स्ट्रक्चर, एनिमल बाइट्स, बोरिंग थ्रू स्किन, वेक्टर बोर्न पैथोजन थ्रू द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो सारे जो है ऐसे स्प्रेड होते हैं। उसके बाद सेवन्थ है इसका करैक्टरिस्टिक होस्ट specificity of parasites. The habitats of parasites are living organisms which themselves can respond the actively to the presence of parasite. So these all are the characteristics of parasitism. Okay, so ये आपने जो है इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको characteristic पूछा है तो आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट पैरासाइट्स को फर्दर डिवाइड किया है, दैट इज़ दी नेक्टोट्रोपिक पैरासाइट एंड द बायोट्रोपिक पैरासाइट। नेक्टोट्रोपिक पैरासाइट जो है वो होस्ट को किल करते हैं एंड कंटिन्यू टू लिव ऑन द डेड होस्ट। डेड होस्ट पे वो लिव करेंगे, सो द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट आर मोर अवेलेबल टू देम। फॉर एग्जाम्पल, ब्लो फ्लाई इज द nectoparasite and lay the egg on the animal host. Next we have the biotrophic, do not cause death of the host. As for them, dead host is inhabitable, so death of the host means the end of their active life. जहाँ पे हम डेथ की बात करें, दैट मीन्स जो उनकी लाइफ साइकिल है, एक्टिव लाइफ साइकिल है, वो एंड हो गई है, ठीक है। सो मोस्ट पैरासिटिक वर्म्स जैसे लाइस, फ्लीज, प्रोटोजो एंड द पैरासाइटोड्स, रस्ट, स्मर्ट्स एंड द मिल्ड्यूज आर द बायोट्रोपिक पैरासाइट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द एविडेंस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंस्टेंट पैथोजेंस है जो कि डैमेज करता है बहुत ईजली। एग्जांपल है हमारे पास अमेरिकन चेस्टनट की। शेप ऑफ पैरासाइट मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड शेप ऑफ पैरासाइट है वो इजी पेनिट्रेशन में हेल्प करता है इन द होस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पार्ट ऑफ क्यूटिकल एडहेसिव स्ट्रक्चर। ये सारी जो है मोफोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है पैरासाइट को हेल्प करती है कि वो ईजिली पेनिट्रेट हो सके इनटू द होस्ट। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन लाइक द एनारोबिक रेस्पिरेशन, like reside in the oxygen deficient media, for example gut parasite, and the isotonicity with the host tissue, so the osmoregulatory apparatus is generally absent. So these all are the physiological adaptation. Next we have the origin of parasitism. So origin of parasitism originated from the predation, from commensalism, from the bacteriophagy, coprophagy, from the saprozoic feeding. From the predation, like the predatory mites, attacking kills, sucking the body fluids of small sized arthropods, partial ectoparasitism. So these all are the permanent ectoparasites, okay. So these are the cause of the originoparasites for the commensalism and the bacteriophagy, coprophagy and the saprozoic feeding. So these all are the characteristics and originoparasitism. So finally जो हमारा मेन टॉपिक था, दैट इज़ पैरासिटिज्म हैज़ completed. इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ द पैरासिटिज्म, टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लोकेशन, इंटीमेसी, नेचर. On the basis of period, we divided into the temporary and permanent with examples, location, ecto and endo with examples, intimacy, facultative and obligatory also with some essential examples. And on the basis of nature, we divided it into the euphagous, phytophagous, social parasites, hyperparasites and the sexual parasites. Next we done the some main characteristics of parasites and further divided into categories like micro and macro and other categories like the necrotrophic parasites and the biotropic parasites. And
did the origin of parasitism. The cause of origin parasitism being the five, that is the predation, commensalism, bacteriophagy, coprophagy, and the saprozoic figure. So this is all about the parasitism. If you have any query, you can simply comment in comment section. I hope this video will helpful for you. So that's all for today. Thank you.